تمہیں پتہ ہے، تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے نوجوانوں، تم جن کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہو یہ حقیقت میں ڈاکو ہیں۔ یہ دنیا تمہارے لوٹ مار کی منتظر ہے۔ ہماری بچیاں بھی، میرا میسج پہنچتا ہے تو پہنچاؤ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی نہیں دینا چاہتے، وہ تمہارے جسم کے متلاشی ہیں، وہ ہوس پرست ہیں۔ ہم نے کہیں ایک حکایت پڑھی تھی کہ بھیڑیے جو ہے، بھیڑیے جانتے ہیں، بھیڑیوں نے یہ باہر آ کر کے اعلان کرنا شروع کیا کہ بکریوں کو آزادی دے دو، بکریوں کو آزادی دے دو۔ ارے بھیڑیا تو بکری کو کھاتا ہے، لیکن بکریوں کی حمایت میں نعرے لگ رہے ہیں۔ سیم آج کی سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھیڑیے آئے ہیں محلے میں اور نعرے لگا رہے ہیں بکریوں کو آزادی دو، بکریوں کو آزادی دو۔ اور چند بکریاں جب بھیڑیوں کو نعرہ لگاتے ہوئے سنی تو ان کو لگا کتنے اچھے بھیڑیے ہماری عزت کی بات کر رہے ہیں، ہماری حمایت، آزادی ہونا چاہیے، صحیح بات ہے۔ سب بکریاں مل کر کے کہنے لگی ہم کو بھی آزادی چاہیے، آزادی۔ دیکھو بھیڑیے جو ہے ہماری حمایت میں گلیوں میں نکلے، بینر نکالے، پوسٹر نکالے، ہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویمنز رائٹس کے متعلق۔ تو جو بوڑھی بکریاں تھی انہوں نے سمجھایا، کہا کہ اے بچیو، آزادی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں، تمہاری عزت مالک کے گھر میں ہی سلامت ہے، یہیں رہو، جو ہمارا مالک ہے وہ ہماری دیکھ بھال اچھی کر رہا ہے، باہر جاؤ گی آزادی، یہ بھیڑیے تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہا بوڑھی بکریوں کو ان سبوں نے گالیاں دی کہ یہ اماں پرانی باتیں کرتی ہیں، تمہارا دور اور تھا، ہمارا دور اور ہے، ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے۔ اور دھرنے پر بیٹھ گئیں۔ بکریوں کو مالک نے آزاد کر دیا، جاؤ آزادی چاہیے، آزادی چھوڑ دیا۔ بکریاں سڑکوں پر آئیں اور بھیڑیوں نے جب آزاد دیکھا تو سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، بکریاں سب مر گئیں۔ ایک حکایت، یہ کوئی لطیفہ نہیں، سیم سچویشن آج میں اپنی بچیوں کو سمجھاتا ہوں۔ جو لوگ تمہاری آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر ان کو اتنی ہی تمہاری عزت پیاری ہوتی تو یہ کلبوں میں اور اسٹیجوں پر ننگا لا کر تمہیں کبھی نہیں کھڑا کرتے، تمہیں کئی لوگوں کے بستروں پر جانے پر مجبور نہیں کرتے۔ یہ حقیقت میں تمہارے جسم کے ننگے پن کے ہوس کے پجاری ہیں، انہیں صرف اور صرف ہوس اپنی پوری کرنی ہے۔ اسی طرح ہے نوجوانوں، تمہیں جو دنیا کی طرف بلا کر یہ کہتا ہے کہ اس میں آزادی، اس میں فریڈم اور اس میں عزت ہے، یہ در حقیقت تمہیں جانور بنانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ نوجوان بن گئے، کانوں میں بالیاں بھی آ گئی، ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی، سروں میں چوٹیاں آ گئی، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھاڑ کر پہننے لگے اور اس کو فیشن کہنے لگے۔ تمہیں عورتوں کی چیزیں دے دی گئی، تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا۔ کتنے نوجوان ہیں وہ یہ سوچے بغیر سب کرنے لگ گئے۔ ارے تمہیں نہ مرد بنا رکھا نہ عورت، بیچ کا بنا کر چھوڑ دیا دنیا نے، پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ابھی فیشن ہے، فیشن ہے، تھکے جا رہے ہو۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے درد کو اگر سب سے زیادہ محسوس کرنے والا کوئی ہے، ہمارے غم کو سب سے زیادہ سہنے والا کوئی ہے، وہ میرے آقا مدینے کے تاجدار کی ذات ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں، میرے امت کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں اس طرح؟ ایک روایت سنو، توجہ ادھر توجہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، سنو اے مسلمانوں، ملک الموت حجرے میں داخل ہو گئے، اجازت لے کر آئے۔ یہ آخری دن تھا میرے آقا کا، نزع کا وقت چل رہا ہے۔ نزع اور سکرات کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس وقت آدمی اپنی ماں بہنوں کو اور بھائی باپ کو نہیں پہچانتا۔ سکرات کے وقت تو آدمی کو اپنا نام تک یاد نہیں رہ جاتا، بڑی سخت حالت کا نام ہے سکرات۔ اچھے لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں یاد رہتا۔ نبی مکرم شہنشاہ دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ملک الموت آئے اجازت لے کر روح قبض کرنے کے لیے۔ تب جانتے میرے نبی نے سب سے پہلے سوال کیا کیا؟ اسرائیل سے، اے
मलकुल मौत, ये नज़ा और ये सकरात की जो तकलीफ है बहुत सख्त है, जरा ये बताओ क्या ये तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? अल्लाह, ये तकलीफ क्या मेरी उम्मत को भी आएगी? कौन है जो हमारे सकरात की तकलीफ को भी अपने नज़ा के वक्त याद कर रहा हो? अपने नज़ा के वक्त। इसी को आला हजरत ने फरमाया था, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। ऐ सुन्नी नौजवानों, सबसे ज्यादा हमारी फिक्र करने वाले वो नबी पाक की जात है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर बेतहाशा रोते रहे, किसके लिए रोते रहे? उम्मत के लिए। रब्बी हबली उम्मती, रब्बी गफिरली उम्मती। ताइफ में पत्थर खा करके भी दुआ करते रहे, मौला मेरी उम्मत मुझे नहीं पहचानती, इन्हें माफ कर दे। वो नबी पाक जो मेराज के सफर में जाकर के भी अल्लाह करीम की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब की मंजिल, उससे ज्यादा कुर्ब की मंजिल पूरी दुनिया में किसी को दी गई नहीं और ना ही दी जाएगी। उस वक्त भी मेरा रसूल अपने रब से कोई चीज पूछ रहा है तो ये है कि ऐ मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। कौन है जो हमारी फिक्र करेगा? जानते हैं एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन आपको कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं? जानते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं? देखना हौज़े कौसर पर मिलूंगा, मेरे उम्मती प्यास से तड़प रहे होंगे, अपने हाथ से पानी भर भर कर मैं अपनी उम्मतियों को पिला रहा हूं। वहां पर भी उम्मत की फिक्र है। या फिर हुजूर फरमाते हैं अगर वहां नहीं मिला, मीज़ान अमल पर देखना जहां नेकियां और बुराइयां तोली जा रही होंगी, मैं अपने उम्मतियों के अच्छाइयां और नेकियों के पल्ले को भारी कर रहा हूंगा, वहां मुझे देख लेना, वहां मिल जाऊंगा। और अगर वहां नहीं मिला तो पुल सिरात पर देख लेना, जो जहन्नम के ऊपर का ब्रिज है, मैं अपने उम्मतियों को वहां से आसानी से गुजार रहा हूंगा। महशर के दिन भी मेरे आका हमें फरामोश नहीं कर रहे। एक और हदीस है, सुनो सुनो, एक और हदीस, मेरे आका फरमाते हैं कल क़यामत के दिन तुम मुझे देखोगे, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी, मेरे कंधे पर चादर होगी, वो खसक खसक कर गिर रही होगी, मैं एक हाथ से अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूं। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, जो दुनिया में हमें ना फरामोश करे। और यहां तक कि एक हदीस ये भी है कि जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कब्र में रखा गया, कब्र में उतारने वाले सहाबा कहते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे थे, हुजूर के लब हिल रहे थे। हमने कान लगा करके सुना तो नबी पाक ये कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी गफिरली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब सुनो, जो अपनी कब्र में ना भूले, हशर में ना भूले। ऐ उम्मत के गयूर नौजवानों, क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि उस नबी को तुम यहां भूल गए, उस नबी को तुम यहां भूल बैठे? इसी को तो आला हजरत ने कहा था, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आ जाओ ऐ नौजवानों, हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला आमिना का लाल है, हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात मदीने के ताजदार की है। वो गुंबद खजरा के मकी की कैफियत तो यह है, कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उस रसूल को देखा नहीं जाता। जब जब तुम मुसीबत में मुब्तला हो तो आका बेकरार होते हैं, वो रब ताला की बारगाह में सिफारिश करते, मौला मेरी उम्मत को इस कसम पुरसी से निकाल दे, इस मुसीबत से आजाद कर दे। लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि ये उम्मत उस तरफ देख क्यों नहीं रही? वो रसूल आज भी अपना दर दौलत खोले हुए है, आज भी वो अपना दरबार खुला रखे हुए है। आला हजरत ने कहा है, लब वहां है, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। क्या बात है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें पता है एक बात, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया था,
मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। मक्का में एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका इकलौता बेटा था, लेकिन जिस शख्स का इंतकाल हुआ मरते ही उसका चेहरा गधे की तरह बन गया, गधे की शक्ल हो गई, जानवर की तरह चेहरा बन गया। किसी के घर में कोई बाप मरा हो और चेहरा जानवर की तरह हो जाए, क्या वो दिखा सकेगा दूसरों को मैयत? बेटे ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया, रोने लग गया कि क्या हो गया मेरे बाप के साथ, क्या हो गया। घर वालों को मालूम था, बाहर किसी को नहीं मालूम। रोते बेटा अब क्या करें? बेटे ने यह सोचा कि घर में ये गड़ा खोदूंगा और यहीं पर बाप को दफन कर दूंगा, बताऊंगा नहीं, क्योंकि इज्जत का सवाल है। कोई देखेगा इसका बाप जानवर की तरह हो गया, मरने के वक्त क्या कहेगी दुनिया। रोते हुए अपने घर में बैठा था, अचानक उसके घर का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चादर पड़ी थी। इसने देखा ही नहीं, सारे दरवाजे बंद थे। अचानक दरवाजे से एक बुजुर्ग आए, सीधे उस मैयत की तरफ गए, चादर हटाया, मैयत के चेहरे के ऊपर से हाथ रखा, दुआ की, फिर चादर डाल दी। ये नौजवान जो बेटा बैठा हुआ था ये देख रहा था उस बुजुर्ग को आते हुए और फिर ये करते हुए। फिर उस बुजुर्ग इसके पास आया, कहा, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है? ये चेहरा उठाए बगैर कहता, मैं जानता नहीं आप कौन है, कैसे आ गए, लेकिन आपने देख ही लिया है, अब मेरे बाप के चेहरे को तो देखो। मेरा बाप मरा है, चेहरा जानवर की तरह हो गया, इस बात के गम में रो रहा हूं। आए हुए बुजुर्ग ने कहा, उठ जा, देख तेरे बाप का चेहरा सलामत है। वो गया, जाकर देखता है चादर हटाकर बाप का चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा था, खूबसूरत है, कुछ नहीं बदला। खुशी के मारे रोने लग गया। और ये बुजुर्ग घर से निकल ही रहे थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, दौड़ता हुआ आया और इस बुजुर्ग का दामन पकड़ लिया, पूछा आप कौन हैं? अल्लाह के फरिश्ते, आप कैसे मेरे घर पर आए, ये कैसी रहमत? आए हुए नूरानी बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। बात ये थी, सुन, तेरा बाप एक गुनाह में मुब्तला था जिसकी वजह से अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। एक बुराई थी, वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा, मैं छुपा दूंगा, लेकिन जिसकी वजह से अल्लाह का गजब इस पर नाजिल हुआ। लेकिन ए शख्स, ए लड़के, तेरे बाप की एक अच्छाई ये थी, तवज्जो, अच्छाई क्या है? हमारी मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है, तवज्जो, मौत के वक्त भी चेहरे चमका सकती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे बाप की एक खता थी जिससे मौला नाराज था, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। इसका दुरूद जो फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते थे वो आए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, गजब हो गया, वो बंदा जो आप पर 100 बार दुरूद पढ़ता था रोजाना, उसका चेहरा अल्लाह ने गजब से बदल दिया। हुजूर फरमाते, मैं वहीं से उठा और तेरे घर आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा, बदला तो जरूर था, लेकिन मैंने हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ऐ रब्बे करीम, ये मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला चेहरा है और मैंने हाथ रखा है, मेरे हाथ की लाज रख ले और मेरे इस गुलाम के चेहरे को हुस्न में बदल दे। रब ताला ने फरमाया, ऐ महबूब, अपना हाथ उठाओ, उसके चेहरे को हम चमकदार बना देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए मौत के वक्त भी तशरीफ लाए। ये वाकया सिर्फ इसलिए अर्ज किया, ऐ सुन्नी मुसलमानों, जिससे तुम मोहब्बत करने का दावा करते हो, अगर दुनिया में किसी की गुलामी करते करते तुम्हें 25 साल लग गए, किसी का झंडा उठाते उठाते 20 साल लग गए, मरने के वक्त पुकारना अपने लीडरों को, मैं मर रहा हूं, आ जाओ, मेरा चेहरा बदले तो तुम बदल देना, मैं जा रहा हूं कब्र में, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना, ये कोई तुम्हारी मदद को नहीं आ सकेगा, कोई तुम्हारा चेहरा नहीं बदल सकेगा। लेकिन एक बात का यकीन है, अगर मैं मरने से पहले मेरे मुस्तफा को पुकारो, या रसूल अल्लाह, मैं मर रहा हूं, मेरे मौत के बाद तशरीफ लाना, तो फिर मेरे आका जरूर तशरीफ लाते हैं। इसलिए कि हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, एक मर्द कलंदर, मुजाहिद इस्लाम, वारिस उलूम आला, जानशीने मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर ताजुश शरिया, बदरुत तरीका, मुर्शिद गिरामी की वफात को मैंने आंखों से देखा है। वफात के बाद
48 घंटे हो गए थे। 48 घंटे के बाद जब जिस्म ले जाया जा रहा था, अरे 6 घंटे 10 घंटे के बाद बॉडी फूलने लग जाती है, सुकड़ने लग जाती है, या इधर उधर से पानी बहने लग जाता है। मैंने 48 घंटे के बाद उस ताज शरिया को देखा। मैं जनाजे में हाजिर रहा, और जनाजे में नहीं बल्कि जिसमें पाक पकड़ कर हाजिर रहा। कब्र पर जाने तक जिस्म को जैसे पकड़ा जाता था, जिंदगी में जिस तरह की जिस्म में नरमी थी, वैसी ही वफात के बाद भी नरमी नजर आती थी। वो जिस्म तरोताजा था, उसी तरह चमकदार था। वो क्यों था मैं आपको बताऊं, इसलिए कि उस ताजुश शरिया ने अपनी वफात से पहले बारगाहे मुस्तफा में यूं कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। तेरे दामने करम ने जिसे नींद आ गई है, वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करिया करिया। मेरे अजीजों, बस मुख्तसर सी बात समेटता हूं। जो जिंदगानी तुम्हें अल्लाह ने दी